नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हमें इंदिरा गांधी पार्क ईटानगर पे हम कह सकते हैं कि इंतज़ार ख़त्म हुआ। जो इंटर ट्राइब फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था आपसू के द्वारा, और मैं बता दूं आज के दिन यानी कि 8 मार्च को सीएम खांडू सहित डीसीएम टूर्नामेंट के साथ कई दूसरे दिग्गज के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। फंक्शन हो चुका है, काफ़ी कलरफुल वे से ये जो इवेंट का इनॉग्रेशन फंक्शन ख़त्म हुआ। और मैं बता दूँ थोड़ी देर में हम आप सबको दिखाएंगे किस तरीके से, लेकिन मैं बता दूँ आज से लेकर यानी कि 8 मार्च से लेकर 10 मार्च तक ये जो इवेंट है चलने वाला इंटर ट्राइब फेस्टिवल। और आप सभी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश कल्चरली कितने रिच है, क्योंकि यहाँ पे 25-26 से भी ज़्यादा मेजर ट्राइब के लोग रहते हैं और साथ ही साथ 100 से भी ज़्यादा सब ट्राइब्स के लोग। तो आप सभी समझ सकते हैं कि यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश वो कल्चरली कितने रिच है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस शानदार तरीके से आपसू का जो इंटर ट्राइब फेस्टिवल का इनॉग्रेशन हुआ। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। Everyone, please give a big round of applause. अरुण किरण शीश भूषण कंठ की धारा, प्रभा किरण चुमित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल हमारा। Bichum district, they are representing 3 different tribes and they are folk dance at one time. Kurumkume is performing in Toija. Through this song, they showcase their traditions, ornament. वो जो अपने ancestor ornaments को दर्शाते हैं इस तोईजा गाने के द्वारा। Dance that is mix of so many tribes. West Kaming is the land from where our Honorable Chief Minister belongs, the land that attracts the tourists from entire the world. Rishi girls from beautiful Kamle district showing their traditional folk dance. Is not just a celebration of our rich cultural heritage, but a testament to the unity, diversity, and collective strength of our indigenous community. The theme of this year Inter-Tribe Festival is Faith of Unity and Embracing Diversity. APSU is not only an organization, but APSU has consistently been the guardian for the rights of its indigenes. APSU has always been the voice for the voiceless. APSU is always into
taking the state and for visualizing the future generation. So here on this very day of ours, I just want to I just want to bring into the knowledge of my students, friends of Arunachal Pradesh, to all the District Students Union of Arunachal Pradesh, that the achievement that APSU have made till date in our tenure. The 7 sisters of Northeast, the Northeast Students Union is there with all Arunachal Pradesh Students Union. Don't feel you are alone. We are all there. We are all here to give our strength to you. We are all here to express our solidarity and support to you. In carry your journey, the whole Northeast will be behind you to protect the interests of the indigenous people of Arunachal Pradesh, to protect the academic career of the student community of the Arunachal Pradesh. So we are here with APSU. और जो यहाँ पे जो स्पीसीज दिया हुआ है, सबका मकसद क्या है, एम क्या है? यहाँ का अरुणाचल प्रदेश का जितना स्टूडेंट है, the student community of Arunachal Pradesh must sign. We'll have to compete. We'll have to complete our academic career, at the same time we'll have to compete. तो एक हिंदी में कैसे बताऊं? ये हो सकता है कि all student community and youth we must sign. हम लोग समझने पड़ेगा. When we are discussing about our new courses, when we are discussing about our science colleges, when we are discussing about our good school education, now the other parts of the country, the student community of the other parts of the country, what they are thinking? They are thinking about the artificial intelligence, machine mechanism. They are discussing about that. So, from this platform, I'd like to raise one voice. Government of India is planning to have 3 Center of Excellence of Artificial Intelligence in the country. 3. We'd like to request that one should be in Northeast. At least one each in all state headquarters of 7 states. Pradhan Mantri बोल रहे हैं Austral Lakshmi है. He is showing keen interest for the Northeastern people. So, when we got IIT, after a long Assam agitation, through Assam Accord, we got one IIT. Then we got IIM in Shillong. Now that process has started. We need one Indian Institute of Science, Education, Research like IIT, IIM, we need that. And we need artificial center of excellence of artificial intelligence in all state headquarters of 7 states. That should be our goal. New courses, because the world is moving fast. We'll have to settle our academic issues, but at the same time, we must have a goal. We must have a dream. As a student body, I'm just discussing with you. And for that, NESO is working with all its component organizations. बहुत पुराना रिश्ता है मेरा, तो ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट, यही है हमारा पहचान, नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान है. हम 7 सिस्टर्स थे पहले में, अभी 8 सिस्टर्स हो गए. सिक्किम आ गया हमारा साथ, 8 सिस्टर, 8 बहनें हो गया है. अभी तो मोदी जी ने कहा है कि नहीं, ये अष्टलक्ष्मी है, हम अष्टलक्ष्मी बन गया है. अष्टलक्ष्मी का यही है कि अष्टलक्ष्मी में 8 जो गुण होता है, 8 रत्न होता है. ये 8 रत्न है, ये जो 8 स्टेट है हमारा, ये बहुत ही, ये जो है फास्टेस्ट डेवलपिंग ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है अभी का समय में. इसमें हमारा जितना भी नॉर्थ ईस्ट का जो स्टूडेंट समाज है उनका भी बहुत योगदान है. इसको हम स्वीकार करते हैं, आपका जो योगदान है उसको हम स्वीकार करते हैं. कि वी शुड टारगेट विद इन 3 years
कि सबसे बिगेस्ट एजुकेशन रिफॉर्म्स अपना स्टेट में हम लोग लेके आएंगे। उसका चलते हुए खास करके अप्सू के साथ में मिलकर जितने भी जो हमारा स्टेक होल्डर्स है यहाँ पे अपना एजुकेशन के लिए बड़ा मंथन यहाँ पे चला। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ सब डिस्ट्रिक्ट में जाके आपका DSUs के साथ में भी बैठ के मीटिंग हुआ, स्टेक होल्डर्स के साथ में मीटिंग होके अभी रिपोर्ट जो है कल असेंबली में पेश हो चुका है। अभी कल परसों 10 तारीख को ऑनरेबल DCM साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है वो 10 तारीख को अपना बजट ले करेंगे और उसमें हमारा मेन फोकस होगा कि एजुकेशन सेक्टर को आने वाला 3 साल में हम लोग किस प्रकार से रिफॉर्म करेंगे। हमारा फ्यूचर जनरेशन्स जो आज बच्चे लोग स्कूल में है वही हमारा फ्यूचर जनरेशन्स है मगर हमारे टाइम्स में गवर्नमेंट स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल हुआ करता था। गवर्नमेंट स्कूल्स जो अनफॉर्चुनेटली अरुणाचल में क्या हुआ कि जब से मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि जो राइट टू एजुकेशन आने के बाद राइट टू एजुकेशन वाज अ वेरी गुड पॉलिसी, बट अनफॉर्चुनेटली अरुणाचल प्रदेश में वो उसको अच्छी प्रकार से हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाने के कारण से जहाँ स्कूल नहीं चाहिए वहाँ भी इतना स्कूल बना दिया। एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट वहाँ पे स्कूल में जाता है, एक टीचर बैठता है वहाँ पे, क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी हम लोग सेंसस करने से हमारा एजुकेशन का हमारा लिटरेसी रेट हम लोग ज़रूर बढ़ा है मगर क्वालिटी एजुकेशन हैज़ गॉन डाउन। वही हमारा सबसे बड़ा चिंता है और हम सबका सबसे बड़ा चिंता वही होना चाहिए। अभी आजकल का ज़माने में जैसे अपना डॉक्टर समुजल जी ने जो बताया, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आजकल मशीन लर्निंग का ज़माना है। उसमें अगर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर इज इन डार्क, अरुणाचल का फ्यूचर डार्क में होगा। इसलिए अभी लेट नहीं हुआ है मगर हम लोगों का अभी सही टाइम है। हम लोगों को टाइम बर्बाद नहीं करते हुए एजुकेशन में हम लोगों को और भी गंभीरता से हम लोग आगे लेके जाएंगे। अप्सू या स्टूडेंट्स यूनियन चाहे वो असम से हो, अरुणाचल से हो, नागालैंड से हो, कहीं भी नॉर्थ ईस्टर्न मेघालय से हो, अप्सू में जो मेंबर एक्टिव होने के बाद क्या हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में कोई गया, क्या हम लोग अपना स्टेट सर्विस में कोई गया, उसको ऊपर भी हम लोगों को अध्ययन करना चाहिए। हम चाहेंगे कि आने वाला दिनों में अप्सू के कोई लीडर अपना ऑल इंडिया सर्विसेज IAS, IPS, IFS, IRS वहाँ में भी एग्ज़ाम करके जाना चाहिए तो लोगों को और भी इंस्पिरेशंस हम लोग ड्रॉ कर पाएगा। और मेरा नेचर आप सब लोग को पता है कि नहीं, जो है क्लियर कट मैं मैसेज बोल देता हूँ, जो अच्छा बात है उसको भी मैं बोलता हूँ और जो ख़राब बात है उसको भी मैं बोलता हूँ क्योंकि वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मेरा ड्यूटी बनता है। अभी देखिए करप्शन को लेते हुए अरुणाचल में अभी भी कुछ जगह में करप्शन से लोग प्रैक्टिस करता है। इसलिए करप्शन को चेक करने के लिए मैंने SIC को स्ट्रेंथनिंग करके एंटी करप्शन ब्यूरो ACB का दर्जा अभी हमने दे दिया है। नाउ एंटी करप्शन ब्यूरो इट विल एक्ट वेरी स्विफ्टली नाउ। अभी करप्शन को और भी हम लोग आयरन हैंड से हम लोग डील करेंगे। मेरा आज यहाँ पे करप्शन का बात रखने का वजह केवल सिस्टमेटिक या सरकारी करप्शन में नहीं है, मेरा युवाओं का करप्शन है कि नहीं, अप्सू इलेक्शंस का करप्शन है कि नहीं, आप लोग मानते हैं कि नहीं मानता है? इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए? अभी हमारा फ्यूचर जनरेशन्स आप लोग ही हैं, आप लोग ही करप्शन में ही उतर गया है, इलेक्शन में इतना करप्टेड, ऐसे नहीं चलेगा भाई। इसीलिए देखिए अभी यहाँ में हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट्स अप्सू प्रेसिडेंट्स लोग भी है, अपना नेसो के चेयरमैन चीफ एडवाइजर साहब भी है, तो वी शुड रिफॉर्म दिस सिस्टम नाउ। ऐसा एक तो सिस्टम करो कि वहाँ पे पैसा चलेगा नहीं वहाँ पे, तो ऐसे जो सिस्टम जब तक एक रिफॉर्म नहीं करेगा तो देखिए ह्यूमन टेंडेंसी होता है, यू नो, वो हटेगा नहीं फिर। सो आई थिंक दुनिया चेंज हो रहा है, सारा चीज़ रिफॉर्म हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम लोग बढ़ रहा है। नाउ आई थिंक इट्स हाई टाइम फॉर अप्सू ऑल्सो टू ब्रिंग ए बिग रिफॉर्म इन इलेक्शन प्रोसेस। तो हमारे तरफ से सरकार की ओर से और पूरा अरुणाचल के जनता की ओर से एक ही मेमोरेंडम है। वैसे चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट करता है, लेकिन मेरा भी एक ही मेमोरेंडम है फॉर द फ्यूचर ऑफ अरुणाचल।
कि अपसू का इलेक्शन प्रोसेस को आप लोग जैसे भी हो सुधारिए। इसके बाद क्योंकि अपना युवाओं सुधरेगा, अपना राज्य सुधरेगा, ये एक चीज़ मैं यहाँ पे रखता हूँ। और अपसू का जो फाउंडेशन खास करके 1972 का जो जर्नी हुआ है, फाउंडेशन इसलिए हुआ है क्योंकि रिफ्यूजी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। तो लास्ट टाइम आई थिंक हवा बगांग वाज प्रेसिडेंट जब गोल्डन जुबली जब सेलिब्रेट हुआ, तो अपसू का 50 ईयर सेलिब्रेशन हो गया। तो मेरे पास आया था पूरे उसका एग्जीक्यूटिव टीम लोग, तो कहा कि अपना अपसू का 50वीं साल है, हम लोग अच्छा से मनाना चाहता है, तो हमारा ओर से जो भी कोऑपरेशन है मैंने सहयोग किया। तो उस वक्त में मैंने एक ही प्रश्न डाला, मैंने कहा कि आप लोगों को पता है कि अपसू का फाउंडेशन क्यों हुआ है? तो मैंने कहा रिफ्यूजी को टैकल करेंगे बोल के ये अपसू का फाउंडेशन हुआ है। तो फिर मैंने प्रश्न किया कि अभी उस रिफ्यूजी को आप लोग क्या कर रहा है, एक लॉजिकल कंक्लूजन में कहाँ लेके जा रहा है? तो फिर मैंने एडवाइस किया कि ठीक है, अभी का जो सरकार है वी आर वेरी क्लियर ऑन रिफ्यूजी मैटर। मैंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश अपना एसटी का जगह है, ट्राइबल्स का जगह है, यहाँ में रिफ्यूजीज के लिए जगह नहीं है। उस जमाने में चकमा और हजूम लोगों को उस जमाने में व्हेन वी वर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उस जमाने में वहाँ पे 1970s 60s में उन लोगों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे जगह दिया हुआ है। तो धीरे धीरे अभी इतना सारा इन्फ्लक्स हो गया। हमारा चकमास के साथ में भी हमारा बैठक हुआ है। मैंने भी समझाया उन लोगों को कि देखिए अरुणाचल इज एन ट्राइबल एरिया, आप लोग यहाँ में परमानेंटली बैठ नहीं सकता है। यहाँ पे आप लोगों को मैं भारत सरकार के साथ में बात करके कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस हम लोग निकालेंगे। तो माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी, तो उनको भी हम लोग ने इस बात को रखा हुआ है। सो आने वाला दिनों में अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ में अपना स्टेट गवर्नमेंट मिलकर मैंने अपसू का जो नया टीम है ताना दोजी को भी मैंने कहा कि इस रिफ्यूजी को टैकल करने में स्टेट का क्या प्लानिंग है उसको आप लोगों को साथ में भी हम शेयर करेंगे। बट वी हैव टू ब्रिंग एन लॉजिकल कंक्लूजन। ये चलेगा नहीं भाई, ये भी जब भी हो रिफ्यूजी गो बैक, कब तक नारा लगाते जाएगा? अभी उस जमाने से नारा लगाते आया। बहुत सारा लीडर्स हम लोगों का अपसू के लीडर्स हमारे बीच नहीं है, और जो सीनियर लीडर्स हैं वो लोग भी कोई बहुत सारा लोग दादाजी भी बन गया है। अभी भी वो सेम एजेंडा अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। मगर अभी यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट वी हैव दैट कैपेसिटी कि हम लोग बातचीत करके कुछ ना कुछ अच्छा सॉल्यूशंस हम लोग ज़रूर लेके आएंगे इस रिफ्यूजी को मैटर को भी सोल्व करने के लिए। और दूसरा एक चीज़ मैं यहाँ पे रखना चाहेगा, अभी अरुणाचल प्रदेश में सोशल मीडिया में हो गया, आप लोग देख रहा होगा, खास करके जो राइट टू फ्रीडम एक्ट 1878 वाला वो मैटर बहुत मतलब चल रहा है। सब लोग अपना व्यूज़ दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, अपना हिसाब से क्या क्या वो लोग कमेंट्स भी देता है। मैं कुछ ही दिन पहले अपना राज्य का जो स्टेटहुड डे था 20 फरवरी, इसी मंच से ही मैंने बहुत क्लियरिटी के साथ में मैंने मैसेज गवर्नमेंट का मैसेज कन्वे किया था कि 1978 का जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है उस जमाने का बना हुआ है, 2 पेज एक्ट है, पूरा वो डिफंक्ट होके बैठ किया था। अपना डेमोक्रेसी में जो भी व्यक्ति को एक उसको अपना एक राइट मिलता है, किसी को भी कोर्ट में लेके जा सकता है, सरकार को भी लेके जा सकता है, इंडिविजुअल को भी लेके जा सकता है। तो किसी व्यक्ति ने उस एक्ट को लेके कोर्ट में चला गया, ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट में, कि उन्होंने अपील किया कि इसमें रूल्स फ्रेम नहीं किया। तो ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट का डायरेक्शंस है कि इसमें रूल्स फ्रेम क्यों नहीं किया और फ्रेम जल्द से जल्द विदिन 6 मंथ्स करना चाहिए। तो वो ऑर्डर जो है अभी राज्य सरकार का पास में आया हुआ है। वो ऑर्डर मिलने के बाद मैंने कहा कि ये मैटर क्योंकि होम डिपार्टमेंट डील करता है, और मैंने कहा कि इसका हम लोग एक कमेटी गठन करेंगे। कमेटी गठन करके अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग हम लोग बैठे हुए हैं। हम बुद्धिस्ट लोग भी है यहाँ पे, क्रिश्चियन लोग भी है, इंडिजीनियस लोग भी है, और कुछ शायद हिंदू लोग भी है यहाँ पे। सो जितने भी अरुणाचल प्रदेश में अपना रिलीजियस जो ग्रुप है, सबसे अपना व्यूज़ हम लोग लेंगे
मैंने पहले से ही वादा किया था कि ये जो रूल्स जो बनेगा किसी भी रिलीजन का खिलाफ नहीं होगा। मैं आज अपना आपसू के प्लेटफॉर्म से भी गवर्नमेंट का जो सोच विचार है उसको रिटरेट करता हूँ। जो रूल्स बनेगा किसी भी रिलीजन का अगेंस्ट में ये रूल्स बनने वाला नहीं है। वी आर ए सेकुलर कंट्री। रिलीजन इज योर पर्सनल चॉइस एंड वी हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर ऑल द रिलीजन्स। आप चाहे बुद्धिस्ट से क्रिश्चियन में चला जाओ, क्रिश्चियन से हिंदू में चला जाओ, हिंदू से इंडिजिनस में चला जाओ, कहीं भी जाओ, इट्स योर ओन चॉइस। कोई रोक नहीं सकता है उसको। तो इस चीज़ को मिसलीड नहीं करना चाहिए। और ख़ास करके मैं जो अरुणाचल का युवाओं हैं, जो पढ़ा लिखा अपने दोस्त लोग हैं, आप सभी से मैं आज इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका क्लैरिटी आप लोग अपने लेवल में लोगों को शेयर कीजिएगा। जो गांव में बेचारा जो हमारा माता पिता है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग भड़क सकता है। क्योंकि आजकल तो थोड़ी देर पहले ताना दोजी ने जो कहा कि मोबोक्रेसी, आजकल मोबोक्रेसी का जो लीडर लोग आता है बहुत अनपढ़ लोग भी होता है, क्या क्या बोलता है उनको कुछ समझ में भी नहीं है, ऐसे लेकिन भड़का देता है कि मतलब अभी कुछ होने वाला है। सो इसलिए इस सब चीज़ में हमारा युवाओं लोग, हमारा पढ़े लिखे लोग, आप लोगों को आगे आके लोगों को बताना चाहिए फैक्ट बात क्या है। I extend my deepest thankfulness to the Chief Minister, Sri Pema Khandu ji, for gracing this beautiful occasion with us. Sir, your always continued supporting and commitment towards preserving and commitment to unite tribes among the Arunachal Pradesh. Likewise, our APSU also maintain the motto of Ekta Pe Anekta. So we are truly honored to be with us, you sir. I declare the Inter-Tribe Festival 2025 Games, Sports, Cultural and Literary event open. Please put your hands together. Yes, we have. तो इस वक्त हमारे साथ आपसू के फाइनेंस सेक्रेटरी ब्याबंग हापो दुई जी है। चलिए उनसे सीधे जानते हैं कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया कि बहुत शानदार तरीके से जो इनॉग्रेशन फंक्शन हुआ है अरुणाचल का जो इंटर ट्राइब फेस्टिवल जो आपसू के द्वारा ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा था। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, काफ़ी शानदार तरीके से हुआ आज का इवेंट। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शाम को और 2 दिन चलने वाला है, ओवरऑल आज के बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक्चुअली आज का जो इनॉग्रेशन जो ग्रैंड सक्सेस है उसका क्रेडिट जो है मैं हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है उनको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि उन लोगों ने बारीकी से पार्टिसिपेट किया है। अपना अपना जो भी डेलीगेट्स है, हम लोगों ने कहा था कि आप 50 डेलीगेट्स लाने के लिए, लेकिन उन लोगों ने है किसी ने 100, कोई किसी ने 100+ जो डेलीगेट्स लेके आया। इसी का चलते आज बहुत ही ग्रैंड सक्सेस हुआ और थैंक्स गोज टू ऑनरेबल सीएम साहब। उसने आज हम लोग का इनॉग्रेशन प्रोग्राम में ग्रेस किया। ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब उन्होंने आया, इसलिए आज का जो है प्रोग्राम जो है बहुत ग्रैंड सक्सेस हुआ है। और इसका चलते हम ये बोलना चाहेगा कि हमारा जो आज का जो टेंटेटिव है, अभी जस्ट इमीडिएट होने के बाद में अभी वॉलीबॉल मैन और वुमेन का अभी किक ऑफ किया जाएगा। तो उसके बाद वॉलीबॉल और मैन और वुमेन का आज एक मैच रखा जाएगा, मैन का एक मैच और वुमेन का एक मैच। उसके बाद में जस्ट इमीडिएट हमारा कल्चर एक्सचेंज का प्रोग्राम जो शुरू होगा 6 बजे के बाद। तो आज का हमारा चीफ गेस्ट है हमारा यूथ अफेयर्स मंत्री किंटो जिनी सर जो है आज हमारा चीफ गेस्ट का तौर पे आज ग्रेस करेंगे। तो इसके बाद में नेक्स्ट कल जो है मिस आपसू का जो प्रोग्राम जो है हाँ वो भी इवनिंग को ही होगा, दिन को स्पोर्ट्स इवेंट होगा। और अभी फिर हमारा डीके हॉल में हमारा जितना भी लिटरेरी प्रोग्राम है वो डीके हॉल में अभी कंटिन्यू चल रहा है। जब से सीएम साहब इनॉग्रेट कर दिया उसके बाद हमारा डीके हॉल में लिटरेरी प्रोग्राम चल रहा है। एशिया राइटिंग, डिबेट, सिम्पोजियम सारा चीज़ जो है वहाँ पे डीके हॉल में कर रहा है। यहाँ 2 इवेंट चल रहा है, एक डीके हॉल में लिटरेरी कंपटीशन और यहाँ में स्पोर्ट्स इवेंट जो है चल रहा है, और रात को कल्चरल इवेंट होगा इस पे वो है। तो हर शाम को, क्योंकि आज को मिलाकर 3 दिन चलने वाला है, तो एवरी इवनिंग को 6 बजे के बाद ही प्रोग्राम होगा। हाँ 6 बजे को बाद ही प्रोग्राम होगा। और मेरा तरफ से अपील है जितना भी हमारा यहाँ का ईटानगर का सिटीजन और अरुणाचल का जितना भी सिटीजन है, यहाँ कोई भी बाहर का लोग नहीं है, हमारा यहाँ का लोकल लोग ही है, हमारा इंडिजिनस लोग ही है। और हमारा जितना भी आज डांस किया जाएगा, कल्चर एक्सचेंज किया, हमारा ट्रेडिशनल्स को ही शोकेस किया जाएगा। इसलिए मेरी तरफ से एक अपील है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट से जो डेलीगेट्स आए हैं, इतना महीना भर प्रैक्टिस करके रिहर्सल करके उन लोगों ने आज आया है, तो उसको एक इनकरेज का तौर पे आप लोग जो है एक जैसे पेरेंट का तौर पे आप आके आज विटनेस कर दीजिए। अपना अपना डिस्ट्रिक्ट, सारा डिस्ट्रिक्ट यहाँ आएगा, क्योंकि और ईटानगर में सब डिस्ट्रिक्ट लोग जो है यहाँ बैठा हुआ है।
तवांग से लेकर करादारी से लेकर के अंजो, सारा डिस्ट्रिक्ट का आदमी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसलिए अब हर एक डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट जो है आज पार्टिसिपेट किया जाएगा, इसलिए आप विटनेस करने के लिए आइए बोल के मेरा तरफ से, आप सबका तरफ से एक अपील है।